आज हमारे साथ मौजूद हैं शोएब जावेद हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के। एक जबरदस्त लीडर हु राइट बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान ही हैज बीन विद द स्टेट लाइफ इंश्योरेंस फॉर द लास्ट 20 मंथ्स, लेकिन इससे पहले ही वाज बेस्ड आउट ऑफ हांगकांग एंड बिफोर दैट इन लंदन। तो दुनिया के फाइनेंशियल सेटअप्स में और बिजनेसेस में क्या हो रहा है एंड व्हाई ही थॉट इट वाज एन अप्रोप्रिएट जंक्चर एंड अ टाइम इन हिज कॉर्पोरेट लाइफ, इन हिज प्रोफेशनल लाइफ टू कम बैक टू पाकिस्तान। Let's find out more about it. Assalamu alaikum and a very good morning, Shoaib sahab. Thank you so much. So बताइए, how have the last 20 months for you, and especially in a country जहां हम कहते हैं कि the insurance penetration is less than 1%. Very true. Did you see that as a glass half empty, half full? Obviously, it was attractive enough for you to come back to Pakistan. Absolutely true. I think I saw it as an opportunity. Okay. I think what it really reflects is कि इस मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। सही। तो आपने पेनिट्रेशन की बात की, जस्ट एक्सप्लेन लिटिल, पेनिट्रेशन मींस के इंश्योरेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज लेस देन 1%, इट्स 0.9%। दुनिया की एवरेज इज अराउंड 4%। इंडिया, मलेशिया, दे ऑल अबाउट 4%। डेवलप्ड कंट्रीज बी अबाउट 10%. So for me, what it means is how much the insurance industry, once a little organized and focused, can contribute more to this economy and towards the protection of the wider population. Right. शोएब साहब, मुझे बताइए कि एक बहुत बड़ा मुझे एक अंडरस्टैंडिंग का गैप नजर आता है। लोग कहते हैं कि eventually sometimes when they need to go in for their insurance claim, तो कोई ना कोई फाइन प्रिंट ऐसा होता है जो हमने पहले इग्नोर किया होता है। मिसाल के तौर पे कोई कुदरती आफत अगर आ गई है, जलजले से आपका मकान गिर गया है, आग लग गई है, तो कहते हैं कहीं कोई फाइन प्रिंट निकल आ जाता है फोर्स मेजोर के हवाले से। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि नाउ द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू, पाकिस्तान हैज फेस वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, फ्लड्स आए अभी, इससे पहले हमने कोविड में दुनिया को बंद होते हुए देखा। सो हाउ डज दी Pakistani and the global insurance industry now define force majeure? Force majeure, I think there's been a lot of work on it. You're absolutely right. ये एक चीज थी which is a taboo on the insurance industry itself, कि हमेशा कहीं fine print निकल आता है. I think if you talk about the world at large, कि innovation on products has been there. Yes. To make sure that it's not a one size fit all. पहले ये था कि insurance was thought of as one size fit all, कि एक insurance policy ली and that's it. अगर आप वो करेंगे in today's world, especially because we're so interconnected, it's not just about floods and all, but every little thing that happens, even if it happens in 7 seas apart, it affects us here. So if you take a one size fit all policy, then the danger becomes too expensive. True. So I think what you'll see around the world is a lot of innovation in understanding different risks and then covering them, so that the individual has the choice. Now then, दो चीजें आती हैं। पहली चीज है कि it is the responsibility of the insurance industry कि communicate सही करें, explain सही करें policy holder को, so that they are aware what risk they are covering, what they are not. दूसरी, if I bring it to Pakistan, I think there's a lot of room to innovate more. So that I think the potential to create new products, to cover niche risks which are not yet covered, but when we target niche risks, it means they become affordable for the individual. बिल्कुल सही। शोएब साहब, क्या कहेंगे अब, जैसे हम अभी कोविड का जिक्र कर रहे थे, बट नॉट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वन वायरस और वन सिचुएशन, लोगों ने सेहत के हवाले से इंश्योरेंस की और बीमे की जो अहमियत है वो मेरे ख्याल में समझी है। अब ये नहीं है कि लोग इंतजार करते हैं कि खुदा ना खासा कोई चीज हो उसके बाद पैसे इधर उधर से जमा करें। उनको ये समझ आने लगा है कि ऐसी नागहानी आफत सेहत के ऊपर कभी भी आ सकती है। आप समझते हैं कि हेल्थ का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें ग्रोथ आई है पिछले 2-3 सालों में? आई है और आएगी। देखें जी, इन डिफरेंट प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट में पंजाब, केपी वगैरह में हेल्थ कार्ड चल रहा है। इसने अवेयरनेस बहुत पैदा की है। सही। एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। उससे फिर ये हुआ है कि आई थिंक दिस इज अ बेस प्लेटफॉर्म, अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू रियली बिल्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म. And State Life itself, this year we've launched a corporate individual health program. Super. We do support the health card, the national health card, but then now we've launched. और इसके
अगर आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ सेलियंट फीचर्स बताना चाहें कि अगर आज कोई हेल्थ कार्ड में इन्वेस्ट करता है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में करता है, तो उसमें कई दफा कहा जाता है कि कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो कवर नहीं होगी, तो अगर आज मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेती हूँ तो मेरे लिए क्या फवायद मौजूद है? देखिए, वन फोकस जो मेरा था, क्योंकि एज यू सेड मैं आया हूँ 20 महीने पहले, आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड हाउ एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस वाज इन पाकिस्तान. सो आवर रियल फोकस, फर्स्ट फोकस वाज टू ब्रिंग इट एट अ प्राइस पॉइंट जो अफोर्डेबल हो सबके लिए. सो स्टेट लाइफ पे जो बेसिक हेल्थ प्रोडक्ट है आप 550 रुपए के लिए ले सकते हैं सालाना. एंड वी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रिस्क्स, आपने जैसे बात की कि हाउ डू वी इनोवेट, सिंध पे आहान the women specific cancer health protection plan जो हमने लॉन्च किया है. The cheapest that you can buy is about 1,500 rupees for 15 lakh cover, which means you're spending about 100 rupees, 100-150 रुपए per महीना. इससे सस्ती सिर्फ खामोशी, यानी इतने तो आप मेरे ख्याल में एक चाय की प्याली अगर आप कॉफी बाहर एंजॉय करते हैं उतने भी नहीं है. I think that's the exact point, to bring across the protection people's hand on an affordable rate that even a college student can afford it. And one of the reasons we targeted this issue of women cancer, क्योंकि अगर आप देखें female cancer rates in Pakistan the worst in the world. Absolutely. Especially incidents के बाद जब death rates आते हैं. And I think the key reasons that we analyze were twofold. One is awareness, कि डिटेक्शन होती है बहुत लेट स्टेज पे. दूसरी है फाइनेंशियल एबिलिटी. सही, बिल्कुल. अच्छा मुझे बताएं, एक तो हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, माइंडसेट वाइज अगर कोई अपने आप को फाइनेंशियली बड़ा स्मार्ट भी समझता है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप है शोएब साहब कि इंश्योरेंस इज स्टिल नॉट सीन एज अ सेविंग टूल. हम ये गैप कैसे फिल करें? क्योंकि देखें, एक सबसे अच्छी बात यह है कि खुदा न खासा कोई बसूरत दीगर कोई नागहानी आफत आती है, तब वो जो आपने पैसे एक पॉलिसी में इन्वेस्ट किए हैं, डाले हैं उसके अंदर, उसको आप पे करते रहे हैं, वो आपकी इंश्योरेंस बन जाती है. लेकिन अगर खुदा न खासा यानी अगर अल्लाह करे कि आपके साथ ऐसा कोई वाकया ना हो, तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद आपको एक लमसम सेविंग अमाउंट भी तो मिलती है. हम उस तरह नहीं देखते इसको. बिल्कुल नहीं देखते. आई थिंक मुझे जितने भी सवालात अभी आए हैं, जब मैं पहले आया था, वो यही था कि जी इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना है. दैट्स नॉट द प्राइम फोकस. आपने बिल्कुल सही बात की, 10 साल बाद 20 साल बाद यू गेट अ मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज गुड, बट द मेन फोकस इज प्रोटेक्शन. I think again, I like to take the responsibility on ourselves more than putting the responsibility on others. So सबसे पहले it is the responsibility of the insurance industry कि ये सही तरीके से communicate किया जाए कि जी main चीज है कि you are being protected against unforeseen events. And then of course savings is the keyword, not investments. कि even if you have an education plan for your children, the idea is that when your children get to the age of going to college, you have a savings maturity benefit coming in your hand to be able to at least help with that education fees. So I think the key word over here, you rightly said, is savings and not investments. शोएब साहब, क्या समझते हैं आप, जब हम बच्चों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, माइंडसेट में कितनी तब्दीली आई है? अगर मैं बहुत पुराने एड्स को देखती हूँ, उसमें यही होता था और लोग इस पे बार बार बात करते हैं कि बेटे की एजुकेशन या उसके कारोबार में पैसे लगते थे और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा हो रहे होता है. उसमें तब्दीली आई है? Hopefully, देखिए the women population of Pakistan about 50%. अभी जिन्ना साहब की सालगिरह भी we were celebrating yesterday. He said कि no nation can progress unless its women don't stand shoulder to shoulder with men. 50% of our population. You can't ignore 50%. If we ignore 50% of our population, it's to our own detriment. I think we have to see it that way. Hopefully, देखें on a lighter note, हमारा एक jingle होता था, ए खुदा मेरे अब्बू. We have purposefully relaunched that. Hopefully you've seen it. Where it says "ए खुदा मेरे अब्बू" and then "ए खुदा मेरी अम्मी," just to emphasize the importance of a nuclear family. And in today's world, competitive world, it's not only the father but the mother's role, and equally it's not only the son's education but empowering your own daughters is very, very important. What is the right age to invest in an insurance plan? मुझे एक बड़ी हैरत की बात ये लगती है कि पाकिस्तान में लोग मिड एज में पहुंच के, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, खुद 40 साल के हो जाते हैं, या एक वेकअप कॉल मिलती है कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से, उस वक्त जाके एक इंश्योरेंस प्लान में उसको सोचते हैं, उसके बारे में उसको एक्सप्लोर करते हैं. आपने पूरी दुनिया का एक्सपोजर है आपके पास, क्या कहेंगे शोएब साहब, सही वक्त, सही उम्र क्या है इंश्योरेंस लेने की? What we should be looking at insurance is a partnering tool in one's life journey. Let's take a simple example. I've been working a lot with the younger kids. We are a young population.
कि एक आप सोचें, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, देयर अ फ्रीलांसर, a tech freelancer, घर में बैठ के on the laptops they do contractual works abroad or domestic market. अगर आप उनका सोचें, right now they're 20-21-year-old, they're not worried about children's education or savings. Their main concern is कि जी अगले 2-3 साल में मुझे I want to upgrade my laptops, अगर ये कुछ खराब हो गया, मेरे technical tools खराब हो गए तो how do I get it? So protection products for those gadgets is important. As that person grows older, maybe 4-5 years down the line, they'll be thinking about marriage. So do they have the right savings plan right now? Because even in Pakistan, marriage is an expensive ordeal. It's December, we all can see that. So you save now for that. Once they're married, they have a kid, then they're thinking about the health of their own themselves, their partner, their children. The health programs for that, or an education program as the child grows old. An endowment program, so the State Life Savings Endowment Program, 20 years gives you excellent returns on maturity. Something for that when you're close to retirement or you want to build a house or something. So that's 20 years almost like time. an executive pension plan, right? Exactly. और ये मेरे ख्याल में, if I may pick that up, it's so important because एक वक्त था, अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखते हैं, वो इदारों के साथ एक तो फुल टाइम होते थे, प्रोविडेंट फंड्स होते थे, बहुत सारे पर्क्स थे. आज का वर्क लाइफ बहुत मुख्तलिफ है. आप कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, आपकी तरफ आपकी कंपनी की बड़ी लिमिटेड लायबिलिटी है, और फिर सबसे बढ़कर ये जिस पे मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी, डिसेबिलिटी इंक्लूजन. यानी आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता, जहां आपने कहा कि प्रोटेक्शन एक बड़ी चीज है, तो प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे हादसे में जिसमें किसी का इंतकाल हो जाए, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो, कल किसी की या तो हेल्थ कंडीशन ऐसी हो, किसी कार एक्सीडेंट में हो, जो काम आप कर रहे हैं अगर आप कल नहीं कर पा रहे, क्या उसमें भी हमें कोई प्रोटेक्शन कवर मिलता है? The key word I would want to use enablement. कि जी जैसे किसी का हादसा हो जाए and they खुदा ना खास्ता they lose a leg or something, disablement, the insurance companies do pay out, we do pay out handsomely, ताकि a person has something in their hands to start their journey again, to enable them. That's what we are here for. I think that's the key word. और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही की. Right now, देखिए, just talking a bit more about the economy, because I know your views are quite interested in that, is that देखिए, the ticking time bomb in Pakistan आपने बहुत सुना है pension, even on the state organizations, and the benefits will not continue as they did in 1970s or 80s. Defined benefit schemes होती थी, companies are moving to defined contributions. So these tools, executive pension plans and savings plans, salary savings plan, become very important कि आपकी जो अभी lifestyle है, once you retire, you're able to continue that with a guaranteed income coming through. अरे शोएब साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, क्योंकि आप जेन जी की बात कर रहे हैं, मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं. मिलेनियल्स तो मेरे ख्याल में वो मिड एज ब्रैकेट में ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट 40 हो चुके हैं, बट थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट जेन जी, उनका एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि टुडे इफ आई बाय अ प्लान एंड आई स्टार्ट पेइंग माई प्रीमियम्स, लेकिन मेरे पास एक सर्टेन इनकम है, कल मेरी इनकम पे अगर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है या मेरी नौकरी नहीं रहती है और मैं इतना रेगुलरली प्रीमियम को नहीं पे कर पाता, तो मेरे पास क्या टूल्स हैं? कैन आई गेट लाइक प्रीमियम हॉलीडेज? हाउ डज दैट वर्क? ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग सवाल लगा. नहीं, देखिए, I'll talk about state life. Within state life, what do? We have ability to take loans against the policy. अच्छा. So at market rates. So if you have a liquidity crunch, जैसे आपने कहा, कि the money isn't coming through, or there's a bit of a up and down in your income, you take loans against it. कभी कभार ये भी होता है कि if a policy is paid up, जैसे दिसंबर में अभी we're running a revival policy, कि अगर आपने 5 साल से प्रीमियम पे नहीं कर सके हैं, so you can come back with a late fee waiver of up to 25,000 rupees or so and revive your policy. So we do give those benefits. We do run this campaign on a regular basis, and most over we understand, like you said, कि liquidity crunches कभी भी आ सकते हैं, and hence our policies run a loan facility as well. और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जो मुहतसिब का इदारा है, यानी देयर इज अ फेडरल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, खुदा ना खासा एक लोगों के जहन में हमेशा ये भी होता है कि भाई अगर हमारे क्लेम के वक्त कोई डिस्प्यूट आ गया, कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम किधर जाएंगे? तो उसके लिए एक विफाकी मुहतसिब इदारा ऑलरेडी मौजूद है. अगर मैं उसके फाइन प्रिंट की तरफ देखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट, बाय लॉ, कोई भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो, इवन इफ इट्स स्टेट
लाइफ ऑफ पाकिस्तान या एनी अदर कंपनी यू इन्वेस्ट इन, विद इन 90 डेज आपका क्लेम सेटल होना जरूरी है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत ही क्रंची स्टिकी सिचुएशन है और आप मोहतसिब के पास जाते हैं, उनके पास से भी यानी उन तक पहुंचने के बाद भी आपके पास 60 डेज के अंदर अंदर कोई भी क्लेम हल होना है। तो इन एनी केस यू आर वेल प्रोटेक्टेड। प्लीज सेविंग्स के बारे में सोचिए। आज जो हम और आप ही हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, बड़े मुश्किल हैं, लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं सेविंग करने के लिए। एक माइंडसेट है शोएब साहब, जो बच जाता है ना इनकम में से, हम कहते हैं वो सेविंग्स है। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, जो अच्छी आदत आपके अंदर डेवलप होगी कि आप पहले सेव करेंगे और फिर बकाया रकम को आप सर्व करेंगे। सो आई थिंक दैट्स द शिफ्ट वी ऑल नीड टू मेक। Absolutely. Thank you so much for being here this morning and for sharing these wonderful insights and inside information with us. Insight से मुराद है कि ये हमारे माइंडसेट और बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए बहुत अहम है। So thank you once again.